Thank you, Dr. Mazhar. And I'd like to thank the Academy of Family Physicians for inviting me here. जब मैं प्रोग्राम देख रहा था तो आई सॉ दैट मेरे से पहले बड़े ही एलोक्वेंट और अच्छे स्पीकर्स बात कर रहे होंगे एंड द अमाउंट ऑफ कंटेंट यू हैव बीन डाइजेस्टिंग मी एज वेल. और खाने के बाद तो मुझे तो सच्ची बात है बड़ी नींद आ रही थी, तो आई डिसाइडेड इवन बिफोर कमिंग हियर दैट विल बी वेरी हैवी. I like to make this presentation as easy and as small as possible. और मज़र का भी यही मेरे से था कि भाई आसान से कोई थोड़े से प्रैक्टिकल चीज़ें बता दें. So I like to make it small, but hepatitis B, as you know, is such a complicated thing, and to make sense out of it was not easy. But I've tried. Let's see how I succeeded. The topic is diagnosis and treatment of hepatitis B. इसके लिए थोड़ी सी हमें जो देखना पड़ेगा इसमें दैट विल बी उसकी पैथोजेनेसिस थोड़ी देखनी पड़ेगी. उसके बगैर डायग्नोसिस विल नॉट दैट बी इजी टू अंडरस्टैंड. एंड उसी से रिलेटेड विल बी द ग्रुप्स इन विच वी ट्रीट हेपेटाइटिस बी. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल अब आप जो पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे जो आएगा दैट विल बी ऑफ HBV DNA levels. They will not only be important in making the subgroups for treatment but also for diagnosis. थोड़ा सा आप सारे जानते ही हैं बट स्टिल वेरी ब्रीफली, हेपेटाइटिस बी इज़ हेपेडना वायरस और ये बॉडी में सर्कुलेशन में ब्लड में 3 तरह से पाया जाता है. इट विल बी बिग वायरॉन्स जो कि फुल वायरस होते हैं, छोटे छोटे गोल बेतहाशा स्ट्रक्चर्स विच आर द एक्सेसिव एनवेलप्स विच हैव बीन मेड एंड द न्यूक्लियोकैप्सिड जो कि बेसिकली उसका जीनोम होता है. इसके अलावा एक और याद रखने की चीज़ है दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ cccDNA. It has now been known that once the hepatitis B virus enters the liver, the genome enters the hepatocyte और वहाँ जाके it binds covalently with the DNA of the human hepatocytes, and from there then it controls the production of the further virons. Once even treated, they say that this cccDNA does not leave the cell, it remains there. The genome of hepatitis B इसकी basically 4 genes हैं. आपने जो याद रखने वाली हैं, दे आर द S, C and P. S से सरफेस एंटीजन बनता है, C इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोर एंटीजन और उसी के साथ द E एंटीजन एज वेल. इसमें इफ़ यू कैन सी C का छोटा सा निचला एरिया जिसे प्री C कहते हैं, विच इज़ द प्री कोर एरिया. इफ़ दिस इज़ डिफेक्टिव then these patients are not able to express their E antigen in the serum. This is the point which these are the patients which ultimately get missed and develop more severe disease which is called as the pre-core mutants. And then the P gene is responsible for the DNA and the DNA polymerase. So there are 3 main antigens, आप सारों को पता ही है. They are the S antigen, the E antigen and the core antigen. Core antigen is never picked up in the serum because it remains within the hepatocytes और इसकी antibody is picked up in the blood. This antibody in fact is the main diagnostic point by which we are able to decide that this infection is recent or old. अगर इसकी antibody C antigen की जो antibody है जिसे core antibody कहते हैं, अगर वो IgM type है then the infection is probably within the last 6 months. It is new, it is probably acute, and if it is IgG, then we label that this patient must be suffering from a chronic hepatitis, which has gone beyond 6 months. कुछ सब टाइप्स भी निकली हैं इसकी हेपेटाइटिस बी की. वी नीड नॉट टू गो इनटू डिटेल ऑफ दैट. उसमें सिर्फ ये है दैट इसमें भी एक सी टाइप होता है विच इज़ मोर लाइकली टू प्रोग्रेस टू क्रॉनिसिटी. एंड देन देर आर सम म्यूटेंट्स. इसमें भी प्री कोर इज़ द वन विच इज़ इंपॉर्टेंट जो बाद में विल डिस्कस स्लाइटली मोर डिटेल. Right. Hepatitis B virus does not kill hepatocytes directly. Virus एक दफ़ा hepatocytes में enter हो जाए, then it is the immune system of the body which recognizes the surface antigen जो hepatocytes पे लगा होता है and it recognizes those and starts killing those cells जिनके बाहर surface antigen लगा होता है. And that is the point when the cell starts getting killed or hepatocytes gets killed or ALT and AST start rising. So initially when hepatocytes are invaded by the hepatitis B virus, the HBV DNA levels are not much and the immune system has not been stimulated. We call this phase as the immune tolerance phase.
इसमें HBV DNA सीरम में इतना नहीं मिलेगा और ALT ज़्यादा रेज नहीं होंगे। कुछ देर के बाद द इम्यून सिस्टम विल रिकग्नाइज दिस वायरस एंड दे विल स्टार्ट क्लियरिंग दोज हेपेटोसाइट्स। दिस इज अ टाइम जब HBV DNA फिर नीचे जाने लग पड़ेगा एंड द ALT AST विल रेज, दिस इज विल बी रेज, दिस इज कॉल्ड एज द इम्यून क्लियरेंस। Luckily for the majority of the patients, 99% of the patients, this stage ends here. उनको immune tolerance, उसके बाद immune clearance, and 99% get cleared. It is only the 1% which will ultimately go into chronicity and inactive carrier or reactivation, which I'll discuss later. ये slide आप बेतहाशा दफ़ा देख चुके हैं, इसमें सिर्फ only one point needs to be elaborated. That is that S antigen and E antigen, they get elevated even before the symptoms appear and even before the ALT starts rising. This is the stage, ये जो थोड़ा सा time है, this is the immune tolerance stage. उसके बाद when the ALT start risen, ये मैंने सिर्फ rise वाले दिखाए हैं, ये यहाँ तक होंगे जब तक वो normal आ रहे हैं. This is the only time when they are at the peak. This is the immune clearance stage. एक दफ़ा when ALT have been to their top and they start coming 2000, 3000, जिस लेवल पे भी चले जाएं, वहाँ से जब नीचे आने लगते हैं, that is the time when basically E antigen जो कि वायरस की डिवीजन को सिग्निफाई करती है, वो E antigen डिमिनिश होना और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू कर देती है। एक और चीज़ जो है that is कोर एंटीजन कहीं नज़र नहीं आ रही, उसकी सिर्फ एंटीबॉडी नज़र आ रही है। So this is what serology is when acute hepatitis occurs. Once the virus enters, if the patient is jaundice, आपके पास आता है, आप उसका S antigen कराते हैं, पॉजिटिव आ जाता है, यू लेबल कि पेशेंट को हेपेटाइटिस बी हो गया है, ठीक है। उसके साथ ही आप anti-HBC का कोर कराएं, ये IgM टाइप होगा इन एक्यूट इन्फेक्शन। E antigen भी पॉजिटिव होगा, दिस विल बी सिग्निफाई दैट द वायरस इज एक्टिवली रेप्लिकेटिंग विद इन द बॉडी एंड देन HBV DNA विल बी पॉजिटिव एज वेल। हम कई दफ़ा जो सरफेस एंटीजन आ जाता है, ALT थाउजेंड्स में गए होते हैं, बाकी चीज़ें हम नहीं कराते बिकॉज वी नो दैट 99% आर एक्चुअली गोइंग टू गेट क्लियर ऑफ दिस डिजीज़, लेकिन अब बाकी चीज़ें भी कराएं तो ये भी पॉजिटिव आएंगी। सो 99% विल क्योर, और क्योर कैसे होगा कि सरफेस एंटीजन की एंटीबॉडी आ जाएगी। Antibody to the surface antigen is in fact a curative thing. Once it gets positive, the person gets cure of the disease. और इसमें E antigen ख़त्म हो जाएगा and DNA will also become negative and antibody in acute state will be IgM. 1% जो unlucky हैं, उनमें surface antigen will remain positive even when the jaundice has disappeared. Enzymes may have come to normal, may not have come to normal. And when you will order a core antigen, it will antibody, it will be IgG type. E antigen may be positive or negative, and these are the ones which you will label them that these are the ones which have gone into chronicity. Chronicity में एक और बात जो याद रखने की है, that is that neonates who are born to females who are HBs antigen positive, इसमें almost उलट होता है। वैसे मैंने कहा है कि more than 99% clear it, in these patients almost 90% they go into chronicity. So because these are the patients who remain in immune tolerant stage for a very long time. The most important thing which predicts that the patient is going to develop chronicity is the HBV DNA levels. उसके अलावा older age में भी the denominator again is जितनी देर लंबी infection रहेगी उतने chances ज़्यादा हैं that the patient is going to develop chronicity. फिर genotype C, and if the patient is concurrently being disease with hepatitis C, HIV or HDV, उनमें भी chronicity में जाने के chances ज़्यादा हैं. And alcohol consumption as well, which even being Muslim country, I think a lot many people you can find who are on drinking. Right. This again is a good slide to see, just to point out the thing that in hepatitis B, the people who go into chronicity, it is basically the HBV DNA levels which determine कि इस पेशेंट ने chronicity में चले जाना है। वो E antigen positive हो, negative हो, उनमें लेवल थोड़ा डिफरेंट होते हैं, या इनएक्टिव कैरियर भी हो जाए। You see that HBV DNA level, they may diminish to hundreds, but they never finish. So this is the most important denominator which determines that what will be the severity and aggressiveness of the disease. Diagnosis of CHB. Chronic CHB is chronic hepatitis B. सबसे पहले क्या जी 6 महीने से ऊपर चला गया, enzymes are persistently raised, and then HBs एंटीजन आप कराते हैं, वो पॉजिटिव आ जाता है, और कोर एंटीबॉडी आप कराएंगे, उसमें IgM IgG दोनों लिखें, IgG आएगा, इसका मतलब है 6 महीने से ऊपर हो गया है,
HBe एंटीजन यूजुअली पॉजिटिव मिलेगा। HBV DNA इसके कुछ भी लेवल हो सकते हैं, 2000 से ऊपर, 20,000 या मे बी इन लैक्स, ठीक है जी। और अगर बायोप्सी जो यूजुअली हम नहीं कराते उसमें यू विल फाइंड नेक्रोसिस एंड inflammation on the biopsy. So for diagnosing chronic hepatitis B, you need to have ALTs which have been there for the last 6 months, HBs antigen positive, and core antigen IgG is positive. Hepatitis B chronic इसकी दो मेजर टाइप्स आप कर लें, एक HBe एंटीजन पॉजिटिव और एक HBe एंटीजन नेगेटिव। DNA का थोड़ा सा दोनों में फ़र्क होता है। सो वंस यू फाइंड दैट द पेशेंट इज क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, अगली चीज़ आपने जो करानी है दैट इज ई एंटीजन, ई एंटीजन पॉजिटिव और ई एंटीजन नेगेटिव। ई एंटीजन पॉजिटिव जो है, दीज आर द पेशेंट्स हु हैव मोर एग्रेसिव डिजीज एंड दे by 10% every year they change back to the stage where E antigen is lost और उसकी भी antibody बन जाती है। These are the patients whom we call that they have seroconverted, ठीक। And when they are seroconverted, the DNA levels fall, ALT levels नीचे चले जाते हैं, and inflammation reduces, and they are also called as inactive. But this stage is mutually exchangeable. वो लोग जो कि नॉन रेप्लिकेटिव या इनएक्टिव कैरियर स्टेज में चले जाते हैं, दे मे एट टाइम चेंज बैक टू रेप्लिकेटिव स्टेज। सो फॉर ए बी हेपेटाइटिस बी वायरस यू आर नेवर श्योर, और ऐसे पेशेंट्स का ऑलमोस्ट दे से दैट अ लाइफ लॉन्ग फॉलो अप इज राइट। अगेन जो चीज़ मैं पहले कह चुका हूँ, पेशेंट HBe एंटीजन पॉजिटिव, 20% चांस है कि वो HBe एंटीजन नेगेटिव जब हो जाएगा, सीरो कन्वर्ट हो जाएगा, वैसे ही रहेगा। 20% के करीब जो है वो रिवर्ट बैक हो जाएंगे, और 30% के करीब जो है दे विल हैव HBe एंटीजन नेगेटिव, एंटी HBe पॉजिटिव, लेकिन उनका ALTs दोबारा रेज करने शुरू हो जाएंगे। उनकी सेरोलॉजी यही वाली होगी लेकिन उनके ALTs रेज कर जाएंगे। दीज आर द वन विच वी कॉल दैट दे आर E एंटीजन नेगेटिव क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी पेशेंट्स, और यही ज़्यादातर प्रीकोर म्यूटेंट भी होते हैं। सो इन HBe एंटीजन नेगेटिव दो तरह के हो गए, एक तो वो जो इनएक्टिव कैरियर हैं और एक जो प्रीकोर म्यूटेंट है। इनमें कई दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यू नीड टू फॉलो अप देम फॉर मैनी मंथ्स में बी ईयर्स। अल्टीमेटली जो प्रीकोर म्यूटेंट्स हैं या जो E एंटीजन नेगेटिव वाले हैं उनमें फ्लेयर अप्स आएंगे ALT के, और जो HBV DNA है इट विल स्टार्ट राइजिंग। Rise. What is the aim of therapy for these patients? हमारी कोशिश तो होती है कि टोटली क्लियर हो जाएं। किसी में हम बायोकेमिकल रिस्पॉन्स देख रहे होते हैं, किसी में बायोलॉजिकल देख रहे होते हैं, हिस्टोलॉजिकल, ये, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिकॉज वायरल क्लियरेंस, जैसे मैंने पहले बताया, ये HBV DNA टोटली ख़त्म नहीं होता है। सो वी हैव टू एंड पॉइंट्स। फॉर HBe एंटीजन पॉजिटिव हमारी कोशिश होती है सीरो कन्वर्ट हो जाएं। 10% पर ईयर खुद ही हो जाते हैं बाई गिविंग ड्रग्स ट्राई दैट इट मे बी इंक्रीज। और E एंटीजन नेगेटिव का अभी तक देयर हैज़ बिन नो एंड पॉइंट विच इज़ टोटली डिफाइंड। इसमें हमारी कोशिश होती है दैट HBV DNA लेवल जितने लो हम रख सकें उतना रखें, और जितनी ज़्यादा देर तक रह सके वो रहे। 7 एजेंट्स, इसमें से स्टैंडर्ड इंटरफेरॉन और लेम्विबिडिन ऑलमोस्ट आउट हो चुके हैं। वी आर लेफ्ट विद पैगुलेटेड इंटरफेरॉन एंड फ्यू ऑफ द न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स। 3 हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं ट्रीटमेंट के, एक E एंटीजन पॉजिटिव, एक E एंटीजन नेगेटिव, और एक डीकॉम्पनसेटेड या कॉम्पनसेटेड सिरोसिस वाले। E एंटीजन पॉजिटिव जो है 20,000 से ऊपर इंटरनेशनल यूनिट्स। अच्छा, ये कॉपीज़ और इंटरनेशनल यूनिट्स का है। इंटरनेशनल यूनिट्स आए उसको तकरीबन 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट विल बी द कॉपीज़ पर ml। तो यूजुअली वी सी इट इन इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml। 20,000 से E एंटीजन पॉजिटिव वालों के अगर HBV DNA लेवल्स आर मोर देन 20,000 और एंजाइम्स आर मोर देन ट्वाइस द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल, ट्रीट देम। You treat them with pegylated interferon or with nucleoside analogs. Pegylated interferon 1 साल के लिए ट्रीट करना है, and almost the same goes for the nucleoside analogs. Pegylated interferon साल बाद बंद कर देते हैं, जबकि nucleoside analogs के लिए the duration of treatment is they say that once the patient is seroconverted उसके बाद भी 6 महीने से 1 साल तक मजीद पेशेंट को देते रहें। 20,000 से ऊपर HBV DNA आ गया लेकिन एंजाइम्स नॉर्मल आए हैं या लेस देन 2 लिमिट्स ऑफ नॉर्मल है। व्हाट यू डू, यू कीप ऑन चेकिंग देम एवरी 6 मंथ्स। या बहुत ही ज़्यादा पेशेंट इसरार कर रहा है, यू कैन हैव ए बायोप्सी एंड सी व्हाट इज़ द स्टेट, हाउ मच नेक्रोसिस इज गोइंग ऑन, एंड यू कैन स्टार्ट। अदरवाइज यू वेट एंड यू ऑर्डर दीज लेवल्स एवरी 6 मंथ्स। HBe एंटीजन नेगेटिव
इसमें जो हमने HPV DNA लेवल रखा हुआ है वो 20,000 की बजाय 2,000 इंटरनेशनल यूनिट्स लगा हुआ है। 2,000 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा HPV DNA लेवल्स, एंजाइम्स मोर देन ट्वाइस रेज, यू ट्रीट दैम। इसमें बिकॉज इट इज़ नॉट नोन फॉर हाउ लॉन्ग वी नीड टू ट्रीट, इंटरफेरॉन यूजली नहीं दिया जाता, वो ये लेफ्ट विद ओनली द न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स। और अगर अपर लिमिट नॉर्मल तक नहीं है एंजाइम्स, यू वेट और यू डू ए बायोप्सी। तीसरा है सिरोसिस। सिरोसिस में long term, they say that if you start on compensated patients, the complication gets delayed. For decompensated, वो कहते हैं दे दें till the patient goes for a transplant. हमारे यहाँ it will be very much debatable, ज़्यादा लोग ट्रांसप्लांट के लिए नहीं जा सकते। वो एक पेशेंट एनकैफ के साथ, एसाइटिस के साथ उसको दें ना दें, कितना फ़ायदा होगा, इट्स जस्ट डिबेटेबल। वी विल आस्क डॉक्टर आरिफ एंड डॉक्टर क़यास व्हाट इज़ देयर प्रैक्टिस। There are many considerations when you start a drug, जो सारी दवाइयों की होती है, efficacy, safety, resistance। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा और भी होता है कि लेटेस्ट दवाई जो है ये वो कराएं। मैं पहले वो डॉक्टर के आज से मैं ये ले चुका हूँ, तो आरिफ साहब ने मुझे वो शुरू कराई थी, डॉक्टर साहब आपको लेटेस्ट आई है तो वो शुरू करा दें। दिस इज़ फॉर द चॉइस ऑफ ड्रग। इसमें आप देखें दैट ऑलमोस्ट ऑल द ड्रग्स दे कॉज लॉस ऑफ HPV DNA, थोड़ा किसी का ज़्यादा किसी का कम। सारे ALT इंप्रूव करते हैं, सारे ही हिस्टोलॉजी इंप्रूव करते हैं। लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स पेग में सबसे ज़्यादा है, बाकियों में भी इनमें भी आया नहीं है, देयर आर स्लाइटली न्यू ड्रग्स, बट पेग में सबसे ज़्यादा है। एंड टू चेंज द ड्रग, वन इज़ प्राइमरी फेलियर। पेशेंट अगर बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, उसका अगर एक भी जीरो का 1 लॉग फॉल का मतलब है कि उसके 10⁴ 0 थे तो 10 उस 3 पे आ जाए, 5 थे तो 4 पे आ जाएं, 3 महीने में इतना भी फ़र्क नहीं हुआ तो चेंज द ड्रग। एंड व्हाट इज़ इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स, कि 6 महीने आपने दे दिया लेकिन DNA फिर भी 2000 से ऊपर है। तो इसमें आप देखें तो अल्टीमेटली सारों के आगे जो जवाब आ रहा है वो एक ही है कि उसे टेनोफाविर या एंटाकाविर से चेंज कर दें। दैट इज़ प्रोबेबली द टेक होम मैसेज फॉर टुडे। Duration, as I've told, PEG is given for 1 year, and all the other nucleosides for E antigen positive, they are given for 1 year, and then after seroconversion for 6 more months. For HBe antigen negative, there is no defined limit. It may have to be given for years, 2, 3, 4. And this is the summary. Basically, this says it all. मैं शायद ये सारा लेक्चर की जगह ये एक ही स्लाइड कर लेता, that too would have been sufficient. That एक S antigen के साथ पेशेंट आ गया, उसका आपने कोर कराया, वो IgG आ गया, पता चल गया 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। उसी वक्त ALT कराएं, वो भी ज़्यादा है, E एंटीजन पॉजिटिव है और HBV DNA पॉजिटिव है, ये HBe एंटीजन पॉजिटिव के खाते में आ जाएगा। एंटाकाविर, टेनोफाविर या पेग। और E एंटीजन नेगेटिव है, देन अगेन एंटाकाविर और टेनोफाविर। टाइम लिमिट इज़ नॉट नॉन। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।